Good morning, everyone, and welcome to today's Utthan session. We were in the series of being responsible, and today is the last day. So, we will be going through a quick revision and then a question answer series. But before we dive into the session, I would like to take a moment here. And on behalf of the entire Jindal Stainless family, I would like to wish Sangeeta Didi a very, very happy birthday. And also, I would like to thank you for coming here every week and teaching us the right path and making us walk along with you on this path. So, thank you so much. I would also like to invite Deepika ma'am to share a few words as well. Om Shanti Didi. Didi, from the entire Jindal group, Jindal family, everybody from Utthan, we really thank you from the bottom of our heart for taking out your time. I know how precious your time is, but every week you've been giving us your guidance and blessings and changing our lives in the right direction. Thank you so much, Didi. And from our entire family, we wish you a very, very long, happy, and successful onward life from, and your directions and guidance always remain with us, and we all prove worthy enough for whatever guidance we get from you. Om Shanti Didi. Thank you. Thank you, ma'am. Didi, over to you. Om Shanti. Thank you very much for all your blessings and all your cooperation of being together for so many, for I think almost it's 2 years now. It will become 2 years. So your cooperation, your part to listen, it's your paths which make us motivated, which makes me enthusiastic also to be with you without fail. And you all go on learning. We all are learning together actually. So especially thanks to Deepika Ben, who has taken the initiative and done so much wonders with the intellect of so many people. So thank you, Deepika Ben, and the entire Jindal JSL, Jindal Industries, the whole family, Jindal Parivar. Om Shanti. So we are going in the journey. So you're enjoying this journey, spiritual journey. Today only in the morning we had this versions which we call Muli. This is a journey. People say life is a journey. उसमें हम चलते रहते हैं. But generally life में दुनिया में रुक जाते हैं. Because कुछ बातों से हम रुक जाते हैं. उसी stage में बैठे रहते हैं. But when we enter spirituality, we actually feel it's a journey. क्योंकि हम रुकते नहीं है. हो गई 1 मिनट पहले भी हो गए, complete हो गए. So next. So this is called life is a journey. So all of you are moving in Utthan. उत्थान लग रहा है, प्रोग्रेस लग रहा है सभी को. यस नो. जब सभी फरिश्ते दिखाई देंगे तब लगेगा रियल प्रोग्रेस. सुबह सुबह सब फरिश्तों को देखना, आज के दिन तो सबको देखना चाहिए तो हमें और खुशी होगी. ठीक है. वेरी गुड. थैंक यू वेरी मच टू ओबे. सो ऐसा वी वर सेइंग कि ये जीवन एक जैसे पिलग्रिमेज है. इट्स अ जर्नी. So when we learn, we understand, and then we move forward. Normally, if the learning stop, then a learning stop, life stops. So when we learn, and even if whatever negative has happened, and I may be the reason for it, still we learn. बल्कि हम ज़्यादा learn करते हैं अगर मैंने ही कुछ गलत किया. So therefore, this is very good learning. So today, so if we just recall क्या क्या हमने सुना तो हम सबको याद होगा. It was we are being responsible. So we say no, it's not doing responsible but being responsible. The topic is like that. So
we are responsible for many other things, which is the doing part, but to be responsible is to feel the responsibility of the being. So of my thoughts, emotions, attitude, weaknesses, past, ये सब हमने लर्न किया कि हम जिम्मेवार हैं इन सब के, कि जो भी मेरे साथ हुआ उसका भी मैं जिम्मेवार हूं. So therefore the blame game, and most important, pinpointing others for what we are today, that will stop. So how many must have done the homework also, no, about that? Anyone did that homework? कि जो भी हुआ पास्ट में, अभी से हमको किसी को ब्लेम नहीं करना कि इसके कारण ये हुआ. कभी कभी लेट भी हो जाता है कोई चीज, हम कहते उसके कारण लेट, उसके कारण हुआ लेट. अभी हम उसको कारण बताएंगे कि तुम्हारे कारण है ना ऐसे हो. हम उसने जो भी किया, लेकिन अगर मैं लेट हुआ, दैट इज अंडरस्टैंड, ओके. बट अगर मुझे दुख हुआ उस लेट का, तो वो कौन क्रिएट करता है? लेट हुआ, रॉन्ग हुआ, दैट इज अंडरस्टैंड. लेकिन उस रॉन्ग होने के बाद दुख जो हुआ, उसका कारण कौन है? सभी एक हाथ से बताए तो मुझे समझ में आता है. उसका कारण कौन है? जो कहते मैं हूं, मैं इंतजार कर रही थी, उसके कारण ये हो गया, मेरे बेटे की सगाई टूट गई, मेरा ये हो गया. उसका कारण कौन है? हम. ये हमें फील करना कि क्योंकि दुख जो हुआ, एंगर जो आया, फ्रस्ट्रेशन जो हुआ, स्ट्रेस जो हुआ, उस सब का कारण मैं. लेट का कारण कोई भी हो सकता है. So we are segregating the situation from the emotions. ये बहुत important. So this is where I am the reason. And second, being responsible मतलब being a leader. जैसे भी जो बड़े होते हैं ना, उनकी जिम्मेवारी होती. So if I feel I am responsible, means I am a leader. Taking responsibility is being a leader. और इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू सेंड हैप्पी पीपल होम. ये भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है. कई बार लीडरशिप की बहुत बड़ी स्किल्स है कि टू सेंड हैप्पी पीपल होम. कई बार हम जो सोचते हैं कि जो भी मतलब हम लोग ऐसे लीडर घर में, ऑफिस में कई सारे सिचुएशंस होती है, और उसके कारण हम कई बार ब्लेम भी करते. लेकिन लीडरशिप का मतलब सेंडिंग हैप्पी पीपल बैक होम, बिकॉज एवरी पर्सन गोइंग आउट ऑफ द ऑफिस एट द एंड ऑफ द डे इज अ पेरेंट. तो इफ यू सेंड हैप्पी पीपल, व्हाट वी डू, we will bring happy people tomorrow at house. क्योंकि अगर हम खुश होके ना किसी को खुश करके भेजेंगे, तो क्या होगा, उसकी वहां डिलीवरी क्या होगी? घर में पहुंचते ही बहुत कुछ पूरे दिन के सिचुएशंस आर रेडी, और उस सिचुएशंस में उसको अगर वो खुश है, द वे ही विल डील. और पर्टिकुलरली घर के जो सिचुएशन, किसमें ज्यादा ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए? ऑफिस के सिचुएशंस में या घर के सिचुएशंस? पर्सनल में या प्रोफेशनल में? किसमें चाहिए ज्यादा? दोनों में चाहिए. कभी कभी पर्सनल भी इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं. तो नाउ इफ द पर्सन इज अनहैप्पी एट इन द ऑफिस एंड ही इज गोइंग होम, वहां की सिचुएशंस है ही सब कुछ. कभी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कभी रिलेटिव्स में ऐसे इश्यूज आ गए, नो देयर आर एंड नंबर, कभी पार्टनर्स में इश्यूज चल रहे हैं. अब वो जो सिचुएशंस को डील करना है, तो अगर 8 to 8 एक्टिव आवर्स ऑफ द डे ऑफिस में होते हैं, 10 to 8 भी, 10 to 5 भी समझ लो, 6 भी समझ लो, तो उस ऑफिस में अगर डिप्लीटेड रहेंगे,
तो डिप्लीटेड बैटरीज घर जाएगी, तो क्या होगा? इट्स लाइक ताकत नहीं है और किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या होगा? गिर जाता है. सो देयरफॉर टू सेंडिंग हैप्पी पीपल एट होम, मतलब द वे दे विल डील द सिचुएशंस. बच्चे ने मार्क्स ठीक नहीं लाए, पार्टनर ने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया, कर दिया, रिलेटिव्स ने ऐसे कुछ कर दिया, बट बिकॉज वो हैप्पीनेस थी, वो शक्तिशाली थे. So when they go back home, they are able to tackle it. And since they are able to tackle it, how many are needed if in the house to make the house peaceful? कितने लोग चाहिए? 4 लोग हैं. How many are needed to make the house peaceful? 4, 1, 2, 3, 4. How many are needed to make the house peaceful? 1, 2, 4. Wonderful answer. 1, myself. आप एक जन खुश रहे, एक जन शांत रहे, एक जन पावरफुल रहे, मोर देन इनफ. एक टेबल है, बहुत भारी है. हाउ मेनी आर नीडेड टू लिफ्ट इट? अगर बहुत भारी है और एक भी पावरफुल है तो वो टेबल लिफ्ट हो जाएगा. और बहुत भारी है और चारों की चारों बुखार में है, क्या हो जाएगा? 4 जन है लेकिन बुखार में है, क्या होगा? No one can lift it. So whatever the situations are, but if one of us is very powerful, so then he is able to tackle it. और जब वो tackle कर लेंगे, make others stable also in the house in that situation. So such happy people, they then come next day morning in the office. So sending happy people home is bringing happy people in the office. Or jab you bring happy people back in the office, so then what will happen? They will take care of the organization. We just are not able, we cannot only take care how well we are doing as an organization, but we have to take care how well we are as an organization. Because खाली हमारी कंपनी बहुत प्रोग्रेस कर रही है, प्रॉफिट बहुत आया, मार्च एंडिंग में बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए, दैट्स ओके. सो वी से आवर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेरी वेल. बट हाउ अबाउट अस? इफ देयर आर हैप्पी पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, so you don't have to take care of the result of the organization, but the people will take care of that organization. So therefore it is also very important that we send happy people back home. तो अब happy people के लिए क्या चाहिए होगा? अगर जब व्यक्ति जब खुश होगा तो there are so many other things. Because if you take care of people, you will not need to, if you take care of the people, so you will not need to take care of your organization. So your happy people will take care of the organization. और जब ऐसी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए during when the people are with me in the organization, the way we deal with them, आप करो, सब कुछ करो, बोलो, but can we delete anger from the office? क्या हम ये कर सकते हैं कि यहाँ जो भी कोई बात करेगा बिना गुस्से से बात करेगा? तो डिलीटिंग एंगर फ्रॉम द ऑफिस पॉसिबल है. सेंडिंग हैप्पी पीपल का मतलब डिलीटिंग एंगर इन द ऑफिस. Or when you delete anger in the office, there are lot many emotions which are deleted. Frustration delete हो जाता है, humiliation delete हो जाता है, hurt, irritation. तो जब हम सोचते हैं कि हम लोगों की केयर करते हैं, हम suppose we are leaders also, or it could be not necessary कि if we are boss then only we are responsible for the team or for our setup. Wherever we are,
we are a person who feels I am contributing to the team is a leader, because he is responsible for his contribution and therefore he is a leader. So when you delete anger, तो कितने सारे इमोशंस को आप डिलीट कर सकते. तो अगर हम ये सोचे कि कोई भी बात करे, किसी से भी बात करे, बात भी करना है, बताना भी है, लेकिन विथ डिग्निटी, विथ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए बताना, ये हो सकता है. देखते हैं इस छोटे से क्लिप से. उस क्लास में लगभग 40 स्टूडेंट बैठे थे. अचानक एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने बहुत घबराते हुए प्रोफेसर से कहा, सर मेरे पिताजी ने मेरे इस बर्थडे पर मुझे बहुत कीमती घड़ी गिफ्ट में दी थी, सर वो घड़ी अभी किसी ने चुरा ली. तो प्रोफेसर ने अचरज से कहा, अभी कैसे चुरा लेगा? बोले सर अभी जो 5 मिनट का ब्रेक हुआ था उसमें मैं अपनी घड़ी अपने टेबल पर रख के गया था और उसके बाद से वो घड़ी नहीं मिल रही है. प्रोफेसर ने कहा, उसके बाद कोई भी इस क्लास से गया और आया नहीं है, इसका मतलब जिसने भी घड़ी उठाई है वो इसी क्लास में है. प्रोफेसर के मन में विचार आया कि इन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगना चाहिए कि किसने घड़ी चोरी की. और प्रोफेसर ने कहा, सब लोग अपनी अपनी आंख में काली पट्टी बांध लो. और सब ने काली पट्टियां बांध ली, लाइन से खड़े हो गए. प्रोफेसर ने एक एक करके सबको यूं हाथ लगाना शुरू किया और उस लड़के की जेब में घड़ी मिल गई. प्रोफेसर ने चुपचाप घड़ी निकाली. घड़ी निकाल के जो मालिक था मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दे दी और क्लास नॉर्मल चलने लगी. किसी को नहीं पता चला. अगले 2-3 दिन तक वो लड़का घबराता रहा, हड़बड़ाता रहा, भयभीत रहा. उसको डर था मेरी बात आज खुल जाएगी, मेरा राज आज खुल जाएगा, लेकिन किसी को पता नहीं चला. धीरे धीरे वो सब कॉलेज से निकल गए. बहुत साल बाद अब वो लड़का जिसने चोरी की थी वो अब एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो चुका था. कॉलेज का रीयूनियन का फंक्शन था, वो उस फंक्शन में आता है. वो अब एक सेलिब्रिटी सा है. वो उस फंक्शन में आया और उसने अपने प्रोफेसर के पास जाके उसके पैर छुए. अब प्रोफेसर से कहा, सर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ. प्रोफेसर ने कहा, बोलो. उसने कहा, सर मेरे जीवन पे आपका बहुत बड़ा कर्ज है, यदि आज मैं जिंदा हूँ तो आपके कारण. प्रोफेसर ने बोला, ऐसा क्यों? उसने कहा, सर आपको याद नहीं होगा, एक बार आपकी क्लास में एक घड़ी चोरी हुई थी और आपने सबकी जेब चेक की थी और मेरी जेब से वो घड़ी मिली थी, लेकिन सर आपने उस दिन वो बात किसी से नहीं की. मैंने निर्णय लिया था यदि उस दिन ये बात सबको पता लगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा. सर आपने मुझे माफ़ कर दिया. उस दिन आपने मेरी इज्जत रख ली, उस दिन आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रख ली. मुझसे गलती हो गई थी सर, लेकिन फिर भी आपने मेरा अपमान नहीं किया. आज मैं जहाँ भी हूँ सर उस लेसन की वजह से. मैं यदि जिंदा हूँ सर तो आपकी वजह से. और प्रोफेसर कहता है, अच्छा वो तुम थे क्या? तो लड़के ने अचरज से कहा, मतलब? बोले, उस दिन मैंने तुम सबकी आंखें तो बंद कराई थी, लेकिन साथ साथ मैंने अपनी आंखों में भी पट्टी लगा ली थी ताकि मुझे भी नहीं पता चले मेरे कौन से स्टूडेंट ने ये काम किया है. मैं नहीं चाहता था मेरे अपने किसी स्टूडेंट की वैल्यू मेरी नज़रों में हल्की हो या मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार करूं. ये सुनते ही वो लड़का जो अब एक नामी इंडस्ट्रियलिस्ट था उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो प्रोफेसर के गले लग के 2 मिनट तक रोता रहा. यही तो अद्भुत महानता है, किसी की गलती पता चलते हुए भी माफ कर देना, किसी को इग्नोर कर देना, उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का मौका दे देना, पता होते हुए भी कि ये कल्प्रिट है उस वक्त जाने देना ताकि उसको सुधरने का अवसर मिल सके, अपना चेहरा ऊंचा करके चलने का अवसर मिल सके. आज के इस युग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी की गलती ढूंढ रहा है, परिवार में माँ बाप की गलती, भाई की गलती, जीवन साथी की गलती, ऑफिस में बॉस की गलती, कलीग्स की गलती, कुछ और नहीं हुआ तो देश की गलती, समाज की गलती, राजनीति की गलती, सरकार की गलती, सबकी गलती ढूंढ रहे हैं. ऐसे में क्या हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एक दूसरे को माफ कर सके? माफ करना और माफी मांगना ये कायर नहीं कर सकते, ये शक्तिशाली लोगों का काम है. साथियों, इस कहानी ने मुझे इतना इंस्पायर किया. एक प्रोफेसर जो ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट उसकी नजरों से गिरे, जो ये नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट किसी और की भी नजरों से गिरे. क्या ऐसे लोगों की समाज को जरूरत नहीं है जहां पर हम लोगों की गलतियां होने के बावजूद उनको इंसान मान के, उनको मिट्टी का पुतला मान के उनको माफ कर सके,
हमारे भाई से गलती हुई, हमारे पार्टनर से गलती हुई, हमारे जीवन साथी से गलती हुई, हमारे किसी और फैमिली मेंबर से गलती हुई, रिलेटिव से गलती हुई, कलीग से गलती हुई, मोहल्ले में, कॉलोनी में, स्ट्रीट में रहने वाले किसी से गलती हुई, समाज के किसी अंग से गलती हुई, एक दो बार माफ कर दो ना, जाने दो ना उनको उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। गलतियां ढूंढना महानता नहीं है, गलतियों को इग्नोर करना और सामने वाले को अपना सम्मान बचाने का मौका देना महानता है। ठीक है ना, हम शांति। सो ये है महानता। तो हम जब ऑफिस से निकले, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, निकले भी नहीं, लेकिन जब भी कुछ हुआ, बताओ, जितना भी बताना है, जैसे भी बताना है, लेकिन उसको शांति से, रिस्पेक्ट से, उसका रिस्पेक्ट डाउन करके नहीं बताए। क्योंकि आज जिसका रिस्पेक्ट डाउन होगा, वो कोशिश करेगा कैसे न कैसे, किसी भी वे से, कहीं ना कहीं हमारा रिस्पेक्ट भी डाउन कर। एंड दैट इज कॉल्ड ऑफिस पॉलिटिक्स। फिर हम कहते हैं कि बहुत पॉलिटिक्स है। इट इज नथिंग, वी समटाइम्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसलिए चाहे हमारी पोस्ट कैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कहीं, बट लेट अस टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे जिसको भी देना है, करना है शांति से। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस में, तो सेइंग एवरीथिंग बट टेकिंग केयर of the dignity of the other soul, other person. और दूसरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जितनी बैटरी लो होगी, एंगर होगा, उसकी एनर्जी लो होगी, और उस ऑफिस में इट्स एन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल एनर्जी लो, और वो डिसकंटेंटेड होगा और जॉब छोड़ देगा। तो इसलिए इतना ऐसा पावरफुल माहौल हो कि किसी को जॉब, वो फैमिली फीलिंग हो कि किसी को छोड़ने का ख्याल ना आए, वो प्यार इतना बंधा हुआ हो प्यार से, जो वो छोड़े नहीं। तो ये भी हमारी जिम्मेवारी है इन द ऑफिस। सो एंड एवरी वन ऑफ अस इज अ कंट्रीब्यूटर टू दिस एनर्जी इन द ऑफिस। इट्स नॉट जस्ट कि बड़े ही है या बॉस ही है। तो इसलिए हम इस तरह का माहौल करें जो सब मेरे साथ कंफर्टेबल हो, क्योंकि घर का एक्टिव आवर्स, जीवन के एक्टिव आवर्स हम केवल ऑफिस में बिताते हैं। हफ्ते में खाली एक दिन हम घर वालों के साथ बिताते हैं, बाकी ऑफिस में। तो इसलिए एक तो ये, और दूसरा गॉसिप ये नहीं होना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी। क्योंकि गॉसिप, क्योंकि इसकी बात उसको कहना और उसकी बात उसको कहना। तो गॉसिप, तो सबसे पहले एंगर, और दूसरा तो नो वन इज अलाउड टू गेट एंग्री एनी ऑन एनीवन। और ये एक बहुत बड़ा नियम हम बना सकते हैं ऑफिस में। और सेकंड, जैसे बताया, गॉसिप, जब जो मैं उसकी बात कह रही हूँ, मेरी और मेरी भी लो हो जाती है, जिसको कह रही हूँ उसकी भी एनर्जी को लो करती हूँ, और जितने लोग सुन रहे हैं और भी जिसके बारे में बोल रही हूँ उसकी भी एनर्जी को लो कर। और अगर एक्चुअली अगर एक दूसरे जो भी जिस कुछ होता है या कोई मेरे साथ कुछ करता है, अगर इंडिविजुअली हम दोनों की कहानियां सुनते हैं ना, तो क्या होता है, लगता है एकदम राइट है। तो न कोई मैं किसी के बारे में कहूं, न मेरे बारे में, न मैं किसी को मेरे बारे में कहने का मौका दूं। तो गॉसिप ये बहुत बड़ा एनर्जी डिप्लीटर है। इफ आई एम टेलिंग एनीवन, आई एम टेलिंग अबाउट एनीवन टू एनीवन, मैं जिम्मेवार हूं ऑफिस की एनर्जी को लो करने, ये भी मेरी जिम्मेवारी। तो इसलिए ये जिम्मेवारी भी हम ले। और दूसरा, तंग आना, बहुत बार ऑफिस में हम तंग भी बहुत आते हैं। अब कितने बार हम अच्छा करना चाहते हैं, जैसे घरों में होता भी है कि हम पेरेंट्स को बहुत केयर करते हैं, बच्चों के लिए बहुत केयर करते हैं, लेकिन कुछ बात अगर वो बुजुर्ग पेरेंट्स पूछते हैं तो तंग आकर जवाब देते हैं। और अब वो कुछ बोल तो नहीं सकते, बुजुर्ग है, लेकिन वो अंदर फील कर रहे हैं
कि देखो आज मैं ऐसा हूँ इस कारण वो मुझे, या बेटा आज कमा रहा है या इसलिए, तो वो फीलिंग करे, उस फीलिंग से उनके शरीर में उनकी बीमारी बढ़ रही है, तो आज वो बीमारी बढ़ने का कारण कौन जिम्मेवार है? हम सोचते हैं मैं पेरेंट्स की बहुत केयर करता हूँ, मैं टाइम टू टाइम दवाई देता हूँ, मैंने नर्स रखी है, मैं उनको ट्रीटमेंट के लिए पूरा पैसा देता हूँ। एट द सेम टाइम क्या हम ये इमोशंस का ध्यान रखते हैं? तो ये भी मेरी जिम्मेवारी है कि हम तंग आकर ना बोले किसी को, क्योंकि तंग आना ये बहुत बड़ा डीमोटिवेटर है दूसरों के परफॉर्मेंस के लिए। फिर हम कहते कि तुम परफॉर्म नहीं कर रहे हो, क्या हम कंट्रीब्यूट कर रहे? एम आई जिम्मेवार, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर नॉन परफॉर्मेंस? तो अपनी जिम्मेवारी को हम देखें। तो इसलिए तंग आना, गॉसिप करना, एंगर, ये बहुत बड़ा एनर्जी डिप्लीटर है। एंड जिम्मेवारी का मतलब ही है कमिटमेंट, ऑलवेज बी कमिटमेंट। जैसे जो जिम्मेवार होता है ना वो कमिटेड होता है, और जो कमिटेड होता है उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो therefore taking responsibility, yes, means I am being very committed। और हम कहते हैं लोगों को मेरे पर विश्वास नहीं है, या हम आपस में भी बोल देते हैं क्या तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है? समवेयर मेरी कमिटमेंट नहीं है, मेरा ऐसा रिकॉर्ड है इसलिए मेरे पर विश्वास नहीं है। आई कैन नॉट ब्लेम अदर्स दैट दे आर नॉट रिलाइंग ऑन मी, बट समवेयर मैं रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए टेकिंग केयर, बीइंग रिस्पॉन्सिबल मतलब taking care of the anger, taking care of gossip, being committed, my every word, not कि मैं प्रॉमिस करता हूँ वही प्रॉमिस है। अगर मैंने कुछ भी कह दिया कि कल आप इस समय मेरे पास आना, मतलब मेरे वर्ड्स मेरे प्रॉमिस है। That much commitment is called responsibility। मैंने कह दिया, जैसे कहते हैं ना रघुकुल रीति सदा चली आए प्राण जाए, मतलब उसने बोल दिया, वो प्रॉमिस है। कभी कभी हम लोग इस जमाने में हैं आजकल कि लोग इतना लिखत में, डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट बनाकर भी लोग टर्न अप नहीं होते, पैसे नहीं देते। इट्स ओके व्हाटएवर देयर आर, लेकिन हमने कह दिया, हमारे लिए वही प्रॉमिस है। कैन आई बी सो मच रिस्पॉन्सिबल? चेक फॉर आवरसेल्फ। एंड लास्ट इज बीइंग डिटरमाइंड। ये भी जो रिस्पॉन्सिबल होगा ना वो डिटरमाइंड होगा, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, कोई करे ना करे मुझे करना है। तो जिम्मेवार जो होगा वो डिटरमाइंड। अगर ये सब है तो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? क्या वी कैन वी बिकम दैट मच रिस्पॉन्सिबल? हाउ मेनी ऑफ अस कैन बिकम कि मैंने शब्द बोल दिया बस, फिनिश, मोर देन इनफ। यू डिड नॉट हैव अ रिटन एविडेंस कि देखो आपने मैसेज दिया था, आपका व्हाट्सएप है, आपका ईमेल है, आपने लिखा था। नो नीड, मैंने बोल दिया, मेरे प्रॉमिस। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है? सो ऑल ऑफ अस आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, आई एम श्योर। सभी उत्थान में सभी रिस्पॉन्सिबल है। सो नाउ वी कैन invite questions from all of you. Yeah. So thank you, Didi. If we have any questions, we can unmute and ask, or we can also type it in the chat box. ओम शांति दीदी। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हमने बात कर रहे थे कि गलतियां किसी की हम ना बताएं, इग्नोर करें, तो समटाइम्स ये इस तरह का नहीं हो जाता है कि अगर किसी को हम मेंशन ना करें कि यू हैव डन दिस एंड यू हैव डन दिस मिस्टेक, तो दे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अरे कुछ होना तो है नहीं है, लेट दे कीप ऑन गोइंग डूइंग द सेम मिस्टेक्स। तो उस केस में फिर कैसे उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं? ऐसे नहीं कि गलतियां नहीं बताना, इग्नोर करना, वो वीडियो में वैसे आया है, वो तो एक वीडियो था, बट एक्चुअली हमको गलतियों का ज्ञान
होना भी जरूरी है, बताना भी है, बट द वे हम बताए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हमारा गलती बताने का एम होता है कभी कभी कि उसको डाउन करना, उसको दूसरे के नजरों से में गिराना, उसका इंसल्ट करना। नो, दैट एनर्जी विच वी डू, दैट इज रॉन्ग। गलती बताना तो है ही, उसके भाई देखो तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, इससे ये बहुत अच्छा है। कभी कभी हम गलती भी बताकर, लेकिन बताने का तरीका है। हमारे में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर आपको इंजेक्शन भी डालना है, लगाना है, तो कैसे होता है, डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं करते, पहले उस जगह को सुन करते फिर इंजेक्शन लगा, ताकि वो इंजेक्शन भी लग जाए, फील ना हो। तो जब किसी को गलती बताना भी है कि देखो तुम ये कितना टाइम पे आते हो, तुम हर चीज कितना व्यवस्थित, यू कीप एवरीथिंग सो नाइसली, यू डू द वर्क सो सिंसियरली। 2-3 स्पेशलिटी जो जेन्यून है वो आप उसको बता, एंड देन से व्हाट इफ यू कैन जस्ट चेंज दिस काइंड ऑफ वट एवर यू फील। नो, यू हैव टोल्ड ऑल्सो, बट यू हैव हाईलाइटेड द स्पेशलिटी। उससे क्या हो गया, बीज को डालना है ना, तो पहले खुदाई करनी होती, उसके बाद हल चलाना होता है, देन यू पुट दैट सीड सो दैट इट कैन टेक वॉट एवर स्ट्रेंथ आ जाती है उसमें, देन इट कैन टैकल। तो गलती एक तो इस वे से बताए ताकि वो पावरफुल बने, गलती वीक बनाने के लिए नहीं बताए कि वो कमजोर पड़े, वो कमजोर हो जाए, लेकिन वो पावरफुल बने सो दैट वो एक्सेप्ट करने। क्योंकि गलती बताना तो चलो इजी है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट कराना, अगर वो ह्यूमिलेट फील हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो वो गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आपकी गलती देखता है। आप इतने तंग क्यों आते हो, आप कोई कम हो क्या? If at all he is not able to speak because of the hierarchy, but at least ये thought तो आ जाता है ना। तो in a way मैं तो आपको नजरों में डाउन हो गई, मैंने उसको डाउन करने की कोशिश की। तो हाउ टू टेल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे फाउंडर थे, जब उनके बच्चे डायमंड मर्चेंट थे, तो उनके बच्चे एक बार बाबा ने बहुत अच्छा एक कमल का ये बनाया था, डायमंड का बक्कल, एंड अपने डॉटर को दिया। अब वो पहनने लगी, बहुत अच्छा लगा। अब वो क्वीन एलिजाबेथ आई, उनके क्लाइंट थे, उसने कहा मुझे, वो डॉटर को देखा, बोला मुझे यही बक्कल चाहिए। अब बाबा ने उनको पूछा, मतलब अब वो तो बच्चा है, वो तो देगा नहीं। तो फिर बाबा ने क्या किया, मतलब अब पूछा तो नहीं, क्योंकि पता है कि बच्चा है, देगा ही नहीं। जब घर गए तो बोला बाबा, सोचा बाबा ने कि अब लेना है, तो बाबा ने दूसरा अच्छा बनाया बक्कल, और बोला बच्चा अभी ये तो पुराना हो गया, आप ये पहनो। तो वो दे दिया उसने। तो बच्चों पर भी कभी क्रोध नहीं थी। सो दिस इज द वे टू टैकल विद द मिस्टेक्स ऑफ अस। How can we remove politics in the organization? If I am not the part of the politics, I can remove that politics. कोई गॉसिप कर रहा है, कोई उसके बारे में मजाक उड़ा रहा है, I am not the part of it. I don't agree to that gossip. अच्छा मुझे क्या पता, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा करते हैं, ओके। समटाइम्स अच्छा करके हम भी लर्न करते हैं, और जब टाइम आता है, सपोज कोई के बारे में मुझे पता है वो रॉन्ग है, और जब उसको वो मुझे नहीं मदद करता है, हेल्प नहीं करता है, आई टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्लोज ऑल द व्हाट आई हर्ड अबाउट दैट पर्सन। सो इट वाज अ पॉलिटिक्स, आई बिकम पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। सो इस टाइप का whatever मे बी, कोई झूठ बोल रहा है, पूरा मेरा टीम ऐसा है, मुझे ट्रूथफुल रहना है।
मुझे सिंसियर रहना है. I don't see the team. I don't see what others are doing. मुझे बॉस ने कहा है कि ऐसे करो. I be very sincere. I don't see the people are not like that. So when I'm not part of any kind of this misbehaving which is going on, I am free from the politics. And one of us who is very powerful by doing it every day, this kind of value-based nature, value-based behavior. So I do it every day, I become powerful, and one day I will be the person to change my team, to change the energy, to change my setup, and finally to change the organization. I can be so powerful. So this is how we can remove. How to prepare ourselves that the anger will never enter in our mind. Yehi is kind of classes and meditation. When we take that silence, when we sit in meditation, that much time, it could be 1 minute, 2 minutes, whatever, you become very silent. And then in that silence, you realize, कि अरे मैंने ये mistake की, मुझे नहीं करना चाहिए. Even if I'm not connecting with the Supreme, but at least that silence will make us realize. So second is silence. थोड़ा समय और कुछ नहीं, चुप बैठ, एकदम पॉइंट ऑफ लाइट में कॉन्सेंट्रेट करो, तो आपको समझ में, खुद को ही समझ में आ जाएगा. जिस तरह से मैंने अभी उससे बात की थी ना, वो राइट नहीं था. There could have been other way to speak. हमको खुद को फील होगा. तो इस तरह से भी हम एंगर को डिलीट कर सकते हैं. और तीसरा है कनेक्शन. तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, उसकी एनर्जी अपने में फील करते हैं, और वो शांति का सागर है. बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आपको गुस्सा बहुत है, आप बार बार परमात्मा से जब कनेक्ट होते हो द पॉइंट ऑफ लाइट, आप बार बार यही इमर्ज करो कि मुझे शांति की रेज मिल रही है, मुझे शांति की रेज मिल रही है. एंड जस्ट टेल योरसेल्फ, अगर नहीं भी मिल रही है, आप ये करो, आप देखो आपके अंदर कैसे शांति आती है, आपको पता नहीं चलता. एंड सो these 3 टेक्निक्स से हम धीरे धीरे गुस्सा निकालते जाएंगे. तो कॉन्शियसली एक तो एम भी चाहिए कि गुस्सा मुझे नहीं करना है, ज्ञान भी चाहिए कि ये भी गुस्सा है, कि मैं तंग आके पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ, तंग आके मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, तंग आके मैं कुछ भी कर रहा हूँ. क्या है, जल्दी बोलो ना. कभी कभी और कुछ नहीं है, जो आते हैं ना हमारे मैसेजेस या फोन आते हैं ना, ये एक्सिस बैंक के आ गए, ये बैंक के, उसमें भी हम तंग होके बात करते हैं. बेचारा उसमें तो कुछ गलती की भी नहीं है, उसका तो जॉब है भाई, तुम बोलो कि अभी नहीं बात करते, सॉरी, उसमें भी तंग आके बात करते. सो वी आर मेकिंग आवरसेल्फ वेरी वल्नरेबल टू एनी लिटिल थिंग विच इवन डजंट मैटर टू अस. अगर आपने अच्छे से भी बोल दिया और रख दिया तो भी उसको कुछ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वहां भी हम तंग आते. तो ये वाला नेचर हम कॉन्शियसली अनुभव फील करें कि दिस इज रॉन्ग एंड आई वोंट डू इट. This lakshya will take the anger, all this together will take the anger out from. I've tried, but the concentration is not getting. उसके लिए अगर आप ये 4 days condensed course of meditation है, whoever feel that my meditation is not powerful, मेरी concentration नहीं हो रही है, can try this 4 days course. That will also help a lot. Yes. I block all of them. Okay. So Anushka Ben will tell some questions. The name of the course is Raj Yoga Meditation Course. Shubhika Ben का फोन नंबर इसको खोलो, लोकेशन भेजना. वो यही है रोड पे. Yes.
So I will take the name of the course again, and I will put it in the mail also that we circulate with the recording. Okay. Are there any other questions or any other expectations or any experiences that anybody has to share? We have 1 to 2 minutes left. If anybody wants to say something, anything. Okay, I think nobody then. Let us close the session for today. Thank you, Didi, for coming. And again, many, many happy returns of the day. I wish you have a very good day today. And let us meet in the next session next week. Thank you so much. Om Shanti, everyone.